Hello everyone, hope you all are doing well. My name is Mauli and today we are going to discuss our chapter 3 of unit 1 which names Rama to the rescue. Okay, and this particular extract is taken from Amar Chitra Katha. Okay, Amar Chitra Katha is, we can say, folk tale like Panchtantra and any other tale. This is Amar Chitra Katha. Now we are going to discuss it. Our first pre-exercises, let us discuss these activities before we read. Okay, so we have to identify these people and we have to mention that how do they help us. So basically, let me give you one hint that this all rescue us, okay, from some or other kind of problem. But how? Then this first one is police woman. How do police rescue us or how do police help us? Then first one is, we can say, they keep our environment safe. Environment, or we can also say surrounding. Okay, they help us to be safe or they help us to fight against any kind of robbery or thieves, like that. Second one is doctor. How do doctor help us? Then doctor helps us to cure any disease, okay, cure any kind of disease. And second one is they gave us proper medication. Third one is firefighter. Okay, so generally we have one assumption that firefighters only rescue us from fire or any kind of and such things, but that is not true. They, of course, they save us from fire, but also they rescue us from any kind of natural calamities too. So helps us to save ourselves from any natural or man-made calamities. Okay, so you learned that this 3 helps us to rescue. Now let's move further and see the next exercise. Okay, so choose the correct option to complete this sentence. Now they have given us one word which says rescue. Rescue का मतलब क्या होता है? So first one, make fun of someone. किसी का मजाक उड़ाना तो rescue नहीं होता. Save someone, yes, save someone means rescue. और ask someone for help, किसी से help मांगना वो rescue नहीं होता. Okay, so save someone can be the correct answer. So what is the meaning of rescue? Save someone. Okay, next one is put a tick mark at the end of the phrase describing those who need to be rescued. Rescued मतलब कि rescue का मतलब होता है save someone, तो फिर being rescued का मतलब क्या होता है? किसी को जिसको बचाने की ज़रूरत है वो. Okay, share your answers with your teachers and classmates. Okay, so first one, किसको हमें बचाना है? A man stuck in a building on fire. Do we need to rescue him? Of course. So put a tick mark like this. A woman buying vegetables in the market. जो एक woman है जो सब्जियां खरीद रही है उसको हमें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है. So वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे. A dog who hurt its leg. Of course, dog is living entity. हमें उसको बचाना चाहिए if he is in trouble. So yes. And a tree being cut down in a forest. Tree is also very important source of our environment. अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे trees कट रहे हैं हमारी आसपास, तो हमें उनको भी बचाना चाहिए. So trees are also should be rescued. Okay, hope this is clear. Okay, next exercise is the policeman in the story you are about to read is called कोतवाल. Okay, जो हमें ये स्टोरी दी हुई है उसमें एक पुलिसमैन है, उसको कोतवाल बुलाते हैं. Some people call him थानेदार, कुछ लोग उनको थानेदार बुलाते हैं. So what do you call a policeman in your language? Share it with your classmate and teacher. ओके, सो जैसे जैसे स्टेट बदलता है, गांव बदलता है, डिस्ट्रिक्ट बदलता है, वैसे लैंग्वेजेस भी चेंज होती है. ओके, एंड दिस स्टोरी इज पर्टिकुलरली टेकन फ्रॉम विलेज. तो उसमें पुलिसमैन को कोतवाल बुलाते हैं.
फिर थानेदार, कुछ कुछ एरिया में थानेदार भी बुलाते हैं। तो आपके जो मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्टेट में पुलिस को क्या बुलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पुलिस को पुलिस ही बुलाते हैं, सो आई एम राइटिंग पुलिस ओनली, ओके। सम इन गुजराती इट प्रोनाउंस एज पुलिस, ओके, इन हिंदी इट्स पुलिस, so it's different. So you have to write your answer subjectively. Imagine, next one, fifth one is, imagine you are alone at home and you face a problem. Answer the following questions and share it with your teacher and classmates. आपको imagine करना है कि आप घर में अकेले हो and some problems occur, okay, कुछ ना कुछ problem हो रही है, तो आप क्या करोगे? First, will you solve the problem yourself or wait for someone to help you? ओके क्या आप वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे या फिर आप किसी की हेल्प लोगे? यू विल आस्क समवन टू हेल्प. दिस आंसर विल कम एज के प्रॉब्लम क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, क्या या वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो सकती है, तो फिर वी विल सॉल्व इट बाय आवरसेल्व्स ओनली. बट इफ द प्रॉब्लम इज बिग, फॉर एग्जाम्पल कोई चोर घुस आया है घर पे या एनीथिंग एल्स, देन ऑफ कोर्स वी हैव टू सीक समवन्स हेल्प. सो द आंसर विल बी will you solve the problems yourself or wait for someone? Then it depends on the problem. If the problem is manageable, then we will solve it by ourselves, and if not, then we will call someone to help. Second, how will you deal with the problem? आप कैसे deal करोगे problem से? Be worried about the problem and give up. So ये आपको options दिए हुए हैं कि आप कैसे deal करोगे. चिंता करोगे problem की और give up कर दोगे. Second, एंग्री हो जाओगे या फिर दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, क्या आप गुस्सा हो जाओगे कि आपके ही पास सिर्फ आप ही प्रॉब्लम, आपके आसपास ही सिर्फ प्रॉब्लम्स है, और फिर थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम. यस, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड. आप जल्दी जल्दी सोचोगे कि ये प्रॉब्लम आया है, ओके फाइन, हाउ कैन आई सॉल्व इट. होप दिस इज क्लियर. ओके, फ्रॉम हियर आवर टेक्स्ट स्टार्ट्स. Rama to the rescue. Okay, now what it is? Then it is a folktale from Tamil Nadu. Okay, we have discussed what is folktale and what is fable in the beginning of our unit. Okay, and it is a folktale of Tamil Nadu. Script मतलब कि इसको लिखा किसने है? Then Lewis M. फर्नांडिस. एंड इसको इल्यूस्ट्रेशंस किसने किया है, मतलब कि आप क्लियरली देख सकते हो. देन दिस इज नॉट अ नॉर्मल चैप्टर, दिस इज लाइक अ कॉमिक बुक यू हैव रेड. ओके, इसको हम इंग्लिश लिटरेचर में दिस इज अ डिफरेंट जॉनरा विच वी कॉल ग्राफिक स्टोरी. तो ये ग्राफिक स्टोरी है. तो इसके इल्यूस्ट्रेशंस किसने किए हैं? राम वेलकर. ओके, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन to the expressions of the character, then clouds which are uttering the dialogues. Okay, सिर्फ आपको ये पढ़ के छोड़ देना है ऐसा नहीं है. And it doesn't mean just because it has picture it is very easy. No, you have to pay attention. So आप देख सकते हो अलग अलग पैनल्स दिए हुए हैं और इसमें अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है. Now the characters have cloud. Okay, जो वो लोग डायलॉग बोल रहे हैं उनके आगे से पॉइंट आउट किया हुआ है, विच मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर डायलॉग इज अटर्ड बाय दैट कैरेक्टर ओनली. होप इट्स क्लियर. चलो लेट्स मूव फर्दर. इन अ विलेज वन नाइट. ओके, एक गांव था जिसमें एक रात को, सो यू कैन सी टू कैरेक्टर्स राइट नाउ हियर. एक ओल्ड ब्राह्मण जैसा दिख रहा है और उनकी वाइफ. सो ब्राह्मण इज अटरिंग, ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन. बहुत ही कठिन दिवस था मेरा, बहुत ही कठिन दिन था. आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब सोना है. सो यू कैन सी कि उनकी वाइफ का एक्सप्रेशन कैसा है. सो हिज वाइफ्स एक्सप्रेशन इज वेरी मच पजल्ड. ओके, कुछ जैसे कि, और वो इस तरफ देख रही है जैसे कि कोई आवाज आ रही है कंटिन्यूसली. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट. सो ये जो ब्राह्मण है वो बोल रहा है कि व्हाट्स द मैटर, क्या इश्यू है, आप क्यों उस तरफ देख रहे हो. सो हिज वाइफ इज सेइंग, आप कुछ बोलो नहीं अभी, लिसन. सी द एक्सप्रेशन इज वेरी मच शॉक. नाउ ही इज ऑल्सो वेरी शॉक्ड. तो वो बोल रहे हैं कि आप लिसन, जस्ट सुनो क्या हो रहा है.
ओके, सो नेक्स्ट वन इज somebody is trying to get in, मतलब जो ब्राह्मण है वो बोल रहा है कि कोई यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है. trying to get in मतलब कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है. come in. okay. Next is wife is saying I think he has already gotten, the noise has stopped. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो कोशिश थी वो अब बंद हो गई है, which means the noise is being stopped. आवाज़ अब नहीं आ रही है, मतलब कि वो already got in. आप देख सकते हो that the tense has been changed. get का got हो गया, मतलब कि वो already अंदर आ चुका है. lie down, don't look. okay. Now look at their expression, they are very scary. कि कोई मतलब आपके घर में जैसे कोई आ जाएगा, आपको पता भी नहीं है, then you will be very scary, right? You will be scared. Lie down, don't look. सो जाओ अभी, कुछ बोलो नहीं या फिर कुछ देखो भी नहीं. Now the Brahmin is saying it's a thief. ये तो चोर है. He must have someone got past Rama. Got past Rama. Rama was the village Kotwal. ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट हु वॉज रामा. देन रामा वॉज द विलेज कोतवाल. कोतवाल मतलब पुलिस. रामा कौन था? जो गांव था उनका, जो गांव में एक पुलिस ऑफिसर था. ओके, इट्स थीफ, ये तो चोर है. ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोल रहा है कि शायद वो रामा के हाथ से निकल गया होगा, वरना वो हमारे घर तक नहीं आ सकता. Which means that somehow got past Rama. ओके, मतलब कि वो रामा के आगे से, या हम बोलते हैं ना रामा के चंगुल से छूट गया होगा, तभी वो हमारे घर तक आ सकता है, वरना तो no one dares to come into the house, especially thieves and all, because we know कि चोर और वो लोग हमेशा पुलिस से डरते हैं. ओके, सो देखते हैं अब क्या होता है. ओके, बिफोर वी मूव फर्दर हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है. सर्कल द ऑड वंस. ऑड मतलब क्या? अलग. सर्कल द ऑड वंस. जैसे कि द कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से हमने अब तक कौन से कैरेक्टर्स देखे? हस्बैंड, वाइफ. ओके, कहीं पे भी चिल्ड्रन का मेंशनिंग था? नहीं था. सो द ऑड वन इज चिल्ड्रन. ओके. हु एंटर्ड द हाउस? कौन आया होगा हाउस में? गेस्ट आए होंगे, तो दे डोंट नीड टू जस्ट आवाज करते करते छुपके से आने की जरूरत नहीं है. गेस्ट को तो गेस्ट नहीं हो सकते, रॉबर हो सकता है, क्योंकि जनरली थीव्स या फिर चोर ही आते हैं ऐसे छुपके छुपाते. एंड कोतवाल ऑफ कोर्स पुलिस नेवर एंटर्स विदाउट परमिशन. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट स्लाइड सेज, व्हाट शुड वी डू? ओके, सो हमने देखा कि वो जो ब्राह्मण था उसने बोला, और वी कैन से हस्बैंड. ओके, हस्बैंड ने बोला कि ये तो मुझे चोर लगता है. तो वाइफ ने पूछा हमें अब क्या करना चाहिए? आई विल टेल यू, लिसन. सो द हस्बैंड हैज़ अ प्लान, कि मेरे पास एक प्लान है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो. मीनवाइल मतलब कि उस दौरान, जब तक वो लोग प्लान डिस्कस कर रहे थे उतनी देर में, सो दिस इज द थीफ. ओके, थर्ड कैरेक्टर. वॉइसेस मतलब कि कुछ आवाजें. दे आर अवेक मतलब कि वो लोग जागे हुए हैं. आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप. मुझे मतलब आई हैव टू वेट, मुझे ना शांति से अभी काम रहना होगा जब तक वो सो जाते हैं, फिर ही मैं चोरी कर सकता हूँ. ओके, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी. ओके, अब ये पिक्चर, ये पैनल स्पेशली ध्यान से देखो. आप देख सकते हो कि इसमें ना एक दीवार है जिसमें एक बहुत ही बड़ा होल है. सो मे बी द वॉइस विच वॉज कमिंग एट दैट टाइम दैट वाइफ लिसन्ड फर्स्ट, वो ये जो होल करने के लिए वो जो आवाज़ें कर रहा होगा उसकी आवाज़ होगी. यू कैन सी इंस्ट्रूमेंट हियर फ्रॉम विच द होल हैज़ बिन मेड. तो मतलब जो थीफ है उसने ही ये होल किया है जहाँ से वो एंटर होगा. ऑफ कोर्स चोर दरवाजे से तो आएगा नहीं कि खोलो मुझे चोरी करनी है. सो ही मस्ट हैव सम ट्रिक टू एंटर, और उसकी ट्रिक क्या थी? दीवार में होल करके घुसना.
तो अब क्या बोल रहा है ये चोर, आई वंडर वेयर दे कीप मनी, मुझे पहले ये ढूंढना होगा कि उन लोगों ने पैसे कहाँ रखे हैं। रिमेंबर मनी वो चोरी करने के लिए आया था। ओके अब चोर को पता था कि वो लोग कुछ आवाजें आ रही है, मतलब वो जगे हुए हैं, तो उसने क्या किया, वो सुनने की कोशिश की। दे आर सेइंग समथिंग, वो लोग कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद से ऐसा हो कि वो लोग अपने पैसे कहाँ रखे हैं उसके बारे में कोई बात कर रहे हो। परहैप्स का मतलब होता है शायद। अबाउट देयर मनी आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं ना एकदम नज़दीक से जाके सुनने का ट्राई कर रहा हूँ कि वो लोग बोल क्या रहे हैं। ओके वो लोग बोल रहे थे व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, मतलब ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट वन थिंग इन योर माइंड कि वो लोग जो भी कर रहे हैं अभी दैट इज ड्रामा, बिकॉज उनको पता है कि चोर ऑलरेडी घर में आ चुका है। दे आर प्लेइंग स्मार्ट। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, सो वाइफ पूछ रही है अपने हस्बैंड से हमारा जो बच्चा होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे। इज ही अ बॉय, वी विल कॉल हिम रामा। ओके अगर वो बॉय होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा रखेंगे। ओके वाइफ अगेन इज सेइंग रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। ओके तो हस्बैंड ने कहा कि रामा रखेंगे हम उसका नाम, तो वाइफ इज गिविंग अप्रूवल, ओके कि हम रामा ही नाम रखेंगे, वो अच्छा नाम है। ओके सो नाउ द थीफ्स एक्सप्रेशन इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। ओके उसको जो चीज़ सुननी थी वो तो उसको सुनने नहीं मिली। व्हेन सो समवन इज टेलिंग ईदर हस्बैंड और वाइफ दैट क्लियर मेंशनिंग इज नॉट गिवन। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली रामा रामा। ओके तो वाइफ क्या बोल रही है कि जब वो घर में होगा तब मैं ना उसको धीरे धीरे आवाज़ दूंगी कि रामा रामा, बहुत चिल्लाऊंगी नहीं। ओके सो राइट नाउ दे आर अटरिंग रामा रामा सॉफ्टली, धीरे धीरे से बोल रहे हैं वो लोग। ओके सो नेक्स्ट अप वी हैव गिवन एक्सरसाइज इन विच यू हैव टू मेंशन इज दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। हाँ दो ही कैरेक्टर है जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और उसमें मैन ने उनकी वाइफ को ही बोला था। सो यस फर्स्ट वन इज ट्रू। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। हमने लास्ट में ही देखा, लास्ट डायलॉग में उसने बोला था मनी, ज्वेल्स नहीं। सो दिस इज फॉल्स। ओके सो थीफ को जाना था कि उन्होंने उनके पैसे कहाँ रखे हैं, गहने नहीं, ज्वेल्स नहीं। ओके लेट्स मूव फर्दर। ओके लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि वो बोल रहे हैं कि अगर वो घर पे होगा तो हम उनको धीरे धीरे, मतलब कोई वो बच्चे को धीरे धीरे बुलाएंगे रामा रामा। ओके सो दे आर बेसिकली इमेजिन ऑल ऑफ दिस थिंग कि अगर हमारा बच्चा होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, हम कैसे उसको बुलाएंगे, वो यहाँ घर पे होगा तो हम उसको रामा रामा बोलेंगे। बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, अगेन आई एम सेइंग इट, कि वो लोग ये पूरा एक्ट कर रहे थे टू सेव देमसेल्व्स। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड। मैन पूछ रहा है अगर वो आंगन में, यार्ड में होगा तो आप कैसे बुलाओगे। लिटिल लाउडर, थोड़ी और ऊंची आवाज में बुलाऊंगी रामा रामा, मतलब कि पहले स्लोली, घर में होगा तो स्लोली, यार्ड में होगा तो थोड़ी ऊंची आवाज में बुलाऊंगी। अब अगेन लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ थीफ, वो बहुत ही एंग्री लग रहा है, राइट। His expression is very frustrated and angry, जैसे कि उसको जो जानना हो वो नहीं सुनने मिला हो। I wish they would stop this silly game. Silly मतलब बेफालतू की ये गेम here means talk, okay? नहीं कि actual game। ये बेफालतू की वो जो बातें हैं वो बंद करें and talk about their money, okay? और इससे अच्छा है कि वो लोग अपने पैसे की कुछ बात करें और fall asleep at least, और ये भी नहीं करना है तो एटलीस्ट सो जाए, तो मेरा जो काम है वो तो मैं करूँ। ओके बट माई डियर वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। ओके आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन ये डायलॉग्स बोल रहा है। सो मैंने सेइंग कि अगर वो हाउस में नहीं होगा, अगर वो यार्ड में, आंगन में नहीं होगा,
ओके, बट स्ट्रीट में, घर से बाहर, आंगन से बाहर होगा तो आप कैसे बुलाओगे? ओह, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। ओके, सो वाइफ क्या कर रही है? फिर तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बुलाऊंगी। सो यू आर नोटिसिंग कि वो लोग ना ऐसे करके किसी को बुला रहे हैं, पहले धीरे से, फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में और फिर एकदम ऊंची आवाज़ में। और वाइफ ने फिर बोला एकदम ऊंची आवाज़ में, रामा रामा। ओके, एंड हु वॉज द रामा? कोतवाल ऑफ द विलेज, पुलिस ऑफ द विलेज। सो दे प्लेड अ ट्रिक, ऐसे करके उन्होंने पुलिस को ही बुला लिया। रामा पुलिस ऑफिसर है, ओके, कोतवाल। और फिर आप देख सकते हो कि रामा ने सुना कि कोई घर में से आवाज़ दे रहा है, रामा रामा। ओके, एंड रामा की आवाज़ आते ही रामा दौड़ रहा है, मतलब पुलिस ऑफिसर इज रनिंग विद अ स्टिक इन हिज हैंड। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा होगा पुलिस ऑफिसर कैसे है यहाँ पे घर के आसपास? तो इन एंशिएंट टाइम और फिर अभी भी विलेज में ना वो लोग पुलिस ऑफिसर और वो लोग कॉन्स्टेंटली दे पेट्रोलिंग। हमने भी सिटी एरिया में देखा होगा कि पुलिस की कार कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग करती है, मतलब कि देखती है कि एवरीथिंग इज काम एंड कंपोज, कोई किसी मुसीबत में तो नहीं है ना। वैसे होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलो लेट्स मूव फर्दर। Okay, again they have given us one exercise. Along with your classmate, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. Okay, तो आपको ना अपने क्लासमेट के साथ रामा रामा 3 वॉइस में बोलना है। पहले धीरे रामा, फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में रामा, और फिर एकदम ऊंची आवाज़ में, जैसे कि आप किसी को दूर से आवाज़ दे रहे हो वैसे। What do you think will happen next in the story? Okay, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा आगे स्टोरी में? सो मुझे ऐसा लगता है कि कोतवाल विल कम एंड रेस्क्यू हुम, वाइफ एंड हस्बैंड। चलो, सो रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. ओके, तो रामा भागा। हमने देखा अगले पैनल में कि वो कैसे भाग रहा है, जहाँ से उसका नाम कोई चिल्ला रहा है उस तरफ। So Rama is noticing and observing everything. Oh, some thief has dug his way into the house. हमने देखा पहले ही कि कोई चोर ने ना दीवार में से खोद काम, जिसको हम बोलते हैं डगिंग, ओके, ऑलरेडी एक होल बना लिया है। तो कोतवाल also enters from that hole only. Okay, and कोतवाल enters in the house and see, at last they have stopped their चैटर। और इतने में क्या हुआ, वो उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने तो बातें बंद कर दी थी, तो चोर है ना वो सोच रहा था वो फाइनली बातें करने तो बंद कर दी, चलो अब मैं मेरा काम कर सकता हूँ। बट नो, पीछे से कौन आ गया है? कोतवाल आ गए। ओके, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड वो बोल ही रहा था कि इतने में क्या हुआ, यू आर अंडर अरेस्ट। और इतने में कोतवाल ने उन्हें पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। वो सोच रहा था कि चलो अब वो लोग सो गए, अब मैं बोलने ही जा रहा था, उतने में कोतवाल आए और उन्होंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब कि आप पकड़े गए हो। ओके, एंड यू कैन सी द एक्सप्रेशन नाउ। सो हस्बैंड इज वेरी हैप्पी, वाइफ इज वेरी हैप्पी, स्माइल इज देयर ऑन देयर फेस। इट्स रामा, ही हर्ड अस। ओके, फाइनली रामा आ गया, उसने हमें सुन लिया। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। हमारा जो प्लान था, ये पूरा प्लॉटिंग था, वो काम कर गया और हम लोग बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। ओके, उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी क्लेवरनेस, अपनी इंटेलिजेंस से क्या किया, अपने आप को बचा लिया फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। किससे? अपने आप को, मतलब कि उनके जो चोरी होने से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। Okay, so here our chapter ends. Hope this much is clear. And Rama to the rescue ends here. Finally Rama, a village kotwal, saved
हस्बैंड एंड वाइफ. सो हस्बैंड एंड वाइफ जो लोगों ने प्लान किया था कि वो अपने बच्चे का नाम देंगे और वो पूरा प्लान किया था कि धीरे बुलाएंगे, थोड़ा ऊंचे आवाज़ में बुलाएंगे और फिर एकदम ज़ोर से बुलाएंगे, वो एक्चुअली प्लान था उनका जो कोतवाल था उनको आवाज़ दे के बुलाने का. होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू सो मच.